اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بسم ربک العظیم۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو درسی کتاب کے سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کے تعارف کے ذریعے ان کی شخصیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 41 کھولیے۔ لکھنے سے متعلقہ قلم اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا ہم سب سے پہلے شخصی تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش میاں والی ہے۔ ان کا اصل نام عبد الوحید تھا، والد کا نام محمد لطیف قریشی تھے اور وہ محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ اب تعلیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، سو دھیان سے اس کو پڑھتے چلے جائیے۔ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے کہاں ان کا جاری رہا۔ سن 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے BA آنرس کیا اور سن 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، پنجاب یونیورسٹی سے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے MA تاریخ، پھر PhD فارسی اور اس کے بعد D.Litt اردو کی ڈگری ابھی حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ان کے 3 جو خاص ڈگریز تھیں وہ کون سی تھیں؟ MA تاریخ، PhD فارسی اور D.Litt اردو کی ڈگری۔ سن 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ تاریخ کے لیکچرار کی طرف کی حیثیت سے انہوں نے ملازمت کی ابتدا کی۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ دیکھیے ان کا قدم بقدم آگے بڑھتا ہوا مستقبل کیا تھا۔ سب سے پہلے سن 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی، اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ 3 جو خاص سبجیکٹ ہیں آپ کے سامنے آ گئے، تاریخ، فارسی اور اردو۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف منصب کی جمع عہدہ رتبہ۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف عہدوں، اب دیکھیے عہدے قوسین میں لکھے گئے ہیں اور کون سے ہیں یہ اسٹوڈنٹس آپ نے اسی طرح فنگر ٹپس پہ یاد کرنی ہے۔ صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ۔ کون سے عہدے تھے اسٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی میں جو جن پر یہ فائز رہے؟ صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ۔ 3 عہدے تھے جن پر وہ فائز رہے، متمکن رہے۔
फाइज रहे, मतमक्कन रहे। सन 1983 से सन 1987 तक मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद के सदर नशीन भी रहे। देखिए, सन 1983 से सन 1987 तक मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान उर्दू एक अहम इदारा जो उर्दू की ज़ुबान तरवीज़ के लिए काम करता है, उसके वो सदर नशीन भी रहे, यानी कि सदर भी रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एसासी मोतमद बस्म इकबाल लाहौर, नाज़िम इकबाल अकादमी पाकिस्तान और मोहतमम मगरबी पाकिस्तान उर्दू अकेडमी लाहौर खिदमत अंजाम दी। अब देखिए कौन कौन से ख़ास जो इन्होंने मुनासिब हैं उसको निभाया। मोतमद के तौर पर, नाज़िम के तौर पर, मोहतमम के तौर पर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उर्दू अदब में इनका क्या अहम मुकाम है, क्या ख़ास किरदार है। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान और अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। मुहक्किक तहक़ीक़ करने वाला, निकात नक़द से है, तनकीद से है, यानी कि अच्छाई और बुराई, महासिन और माइब को अलग अलग कर दिखाना। किस कदर अहम दो मुकाम उर्दू अदब में ये रखते हैं कि जो शख्सियत अपने इल्म में पुख्ताकार होगी, फ़न में पुख्ता होगा, वही कलम उठा सकता है तहक़ीक़ पर और तनकीद पर। डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान और अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। देखिए ज़ुबानें भी दो हैं, उर्दू और फ़ारसी, सिर्फ एक ज़ुबान के मुहक्किक और नक़ाद नहीं थे, फ़ारसी को भी उन्होंने खूब निभाया। इनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल है। अगर इनका हम सरमाया कुतुब देखें, इनकी तसानीफ़ देखें, तो ज़्यादातर इनकी किताबें जो हैं वो तनकीदी कुतुब हैं। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, यानी कि मौजूद तबा थे, वो शेर भी कहते थे, शायर भी थे, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत मुहक्किक और नक़ाद की है। हम ख़ास तौर पे इनकी पहचान जो उर्दू अदब में इनकी रखते हैं वो क्या है, वो मुहक्किक और नक़ाद की है। इनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड भी अता किया है। दो ख़ास तौर पे यहाँ पे आपकी इस तारुफ में पेश किए गए हैं इनके कौन कौन से। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा और सदारती इकबाल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। इनकी तसानीफ़ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तसानीफ़ आपकी किताब में भी दी गई हैं, वो साथ साथ हम देखते हैं, ठीक है। किताब के हवाले से असासियत इकबाल, नज़र गालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुतालाए अदबियात फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मकालात तहक़ीक़, तनकीदी मुताले, उर्दू नसर के मेलानात, मुताले हाली और मीर हसन और उनका ज़माना शामिल हैं। मज़ीद देखिए, बागो बुखार एक तज्ज़िया, अक़वामे शर्क़ का विचार, दफ्तरी उर्दू, आज कल और गुबारे कारवां, इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, फ़लसफ़ा और अदबी तनकीद, दीवाने सौदा, दीवाने जहांदार, मकालाते तहक़ीक़, दीवाने जहांदार, नज़र गालिब, सिफ़ाते मुतशाबिहात,
समाही रिसाला उर्दू अदब। अखबारात में इनके ख़ास जो कॉलम छपते रहे उस हवाले से नवा वक्त बहुत अहम है। सो इस हवाले से स्टूडेंट्स जो आपकी किताब में तसनीफ़ है वो फिंगर टिप्स पे रखिए। मैं दोबारा दोहराई देती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। नंबर 1 असासियात इकबाल, नंबर 2 नज़रे गालिब, नंबर 3 क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला, नंबर 4 इकबाल और पाकिस्तानी कौमियत, नंबर 5 मुताले अदबियात फ़ारसी, नंबर 6 पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, नंबर 7 मकालात तहक़ीक़, नंबर 8 तनकीदी मुताले, नंबर 9 उर्दू नसर के मेलानात, नंबर 10 मुताले हाली और मीर हसन और उनका ज़माना। ये कितने हो गए? 11। आखिरी किताब का नाम क्या है? मीर हसन और उनका ज़माना। सो स्टूडेंट्स इनको जो ख़ास अवार्ड्स दिए गए उनमें नियाज़ फ़तेहपुरी लिटरेरी अवार्ड था जो सन 1984 में दिया गया, तुफ़ैल लिटरेरी अवार्ड जो सन 1986 में दिया गया, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जो सन 1993 में इनको दिया गया, और आखिरी अवार्ड अल्लामा इकबाल अवार्ड जो सन 2003 में इनको दिया गया। उम्मीद बखैर आप तारुफ़ को अच्छी तरीके से याद करेंगे स्टूडेंट्स। तारुफ़ को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे और अहम निकात की सूरत में इसको अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे। स्टूडेंट्स मारूसी के तौर पर इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए, याद करना शर्त है। उम्मीद वासिक है आप हिदायत पर अमल कर रहे होंगे। वस्सलाम, मिस सिदरा सनाम।